Assalamu alaikum guys. I hope you are all good and today we will discuss about the verbs and its kind. Basically what are the verb what is basically the verb is and how it's defined in different kinds and how its kinds are used. तो आज हम वर्ब से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है इसकी टाइप से रेलिवेंट है आज हम उसको डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज वर्ब. Word basically is an important part of speech that we use in our daily communication and language that are used by us especially. ठीक है. Words basically in our daily routine we perform many actions like we are eating, we are going, we are coming here and performing, washing the clothes, polish the shoes. There are different activities that we follow and that we are performed in our daily life. Clear? All the activities that we are performed, like I am washing the clothes, I am making food, I am cooking meals and all this, I am eating, all the things, I am going, I am coming, all the things and activities that are performed by us. जितने भी डेली लाइफ में जो हम काम करते हैं, एक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, इनको हम क्या कहेंगे? वर्ब्स कहेंगे. क्लियर? बेसिकली वर्ब्स is such type of words that indicate the action. Clear? Action and act and performance. Such type of words are called verb. Clear? जितने भी हमारी एक्टिविटीज जो है एक्शन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? Verb. So let's we will discuss the kinds of the verbs one by one. Clear? The first one is action words. Action words basically such type of words that shows the action, performance and acting. Simple is that like swimming, eating, washing the clothes. Clear? Such type of words like washing, wash, go, come, swim. Such type of words simple that shows the action that something is happening and something is acting like that. And the next one is auxiliary words. What is the basically auxiliary words? Such type of words that use as helping words. Clear? The second name of auxiliary words are that helping words. अब helping words जो है basically we are used in our tenses. Clear? Auxiliary words, helping words. जितने भी tenses में helping words use होते हैं, these are called auxiliary words. Like is, am, are, has, have, will, shall, has been, have been, had. ये सारी जो words हैं, these are called helping words as well as auxiliary words. Clear? Like will, shall, has, have, had, has been, have been, so on. Clear? The next one is infinitive. Basically, infinitive words. We casually use this word infinitive. But sorry for that, infinites are the words we use for verb, but these are in actually not words. हम infinitive words का word use तो करते हैं कि infinitive words, but these are not verbs. Clear? ये verbs नहीं होते बट यूज्ड एज अ वर्ड. बेसिकली जो वर्ड जितने भी हमारे एक्चुअल वर्ड्स हैं लाइक एक्शन वर्ड्स हैं. क्लियर? अब जो एक्शन वर्ड्स हैं उनको हम बेस के तौर पर लेके जब हम उससे नेक्स्ट किसी चीज के साथ कनेक्ट करते हैं तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इन्फिनिटिव वर्ड्स. अब जो सिंपल हमारे जो एक्शन वर्ड्स होंगे उनके साथ हम कुछ चेंजिंग करेंगे और उनको हम दूसरे सेंटेंसेस के साथ लिंक करने के लिए जब हम उसके लिए टू का वर्ड यूज करते हैं. ठीक है? इन्फिनिटिव आर द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द टू. जब किसी वर्ड से पहले हम टू का वर्ड यूज कर देते हैं और उसको यूज करने से पहले हम टू यूज करेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव वर्ड्स भी कह सकते हैं या फिर वर्ड्स भी कहेंगे. क्लियर? और सच टाइप ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द टू, ऐसे वर्ड्स जो टू के साथ स्टार्ट होंगे जब उसको हम यूज करते हैं सेंटेंस में किस तौर पे यूज करेंगे? लाइक एज. वो वर्ड्स जो है टू से स्टार्ट होंगे और वो कैसे एक्ट करेंगे? लाइक एज अ नाउन, एज एडजेक्टिव एंड एज एडवर्ब्स वो एक्ट करेंगे. लाइक टू स्विम, टू गो. क्लियर? टू प्ले. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. क्लियर? जो भी ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब जो टू से स्टार्ट होगा दैट आर कॉल्ड इन्फिनिटिव वर्ब्स. द नेक्स्ट वन इज फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब बेसिकली सच टाइप ऑफ वर्ड्स, सिंपल एक्शन वर्ड्स, बट हम उसके सामने क्या कर रहे हैं? वी आर एडिंग प्रेपोजिशन
क्लियर? ऐसे वर्ब्स जिनके साथ हम एडवर्ब्स का यूज करें या प्रेपोजिशंस का यूज करें टू इनहेंस देयर मीनिंग एंड गिव विथ टू देयर मीनिंग, उसके मीनिंग को इनहेंस करने के लिए, उसको एक मोर, उसके मीनिंग्स को चेंज करने के लिए, वैरायटी ऑफ मीनिंग्स लाने के लिए हम उसमें कुछ ना कुछ प्रेपोजिशंस के ऐड करेंगे. सच टाइप आर वर्ड्स कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स. सिंपल द वर्ड इज लुक. क्लियर? Basically now look is what? Looks is simple action word. Up like we are using looking, look for. Clear? Again we are using with that look after. Again I am using look at. Clear? Look for, look after, look at. अब look for का मीनिंग क्या होगा? किसी की तरफ देखना. ठीक है? Look for देख. अब लुक आफ्टर देखभाल करना. लुक फॉर किसी की तरफ आना. क्लियर? लुक फॉर डैट किसी की तलाश करना, तलाश की नजर में किसी को देखना. एंड लुक आफ्टर किसी की देखभाल करना. एंड लुक एट किसी की तरफ देखना या घूरने में आ जाएगा. क्लियर? अब सिर्फ लुक तो सेम एक वर्ड है, बट फॉर, आफ्टर, एट, these words we add in this verb and these are called phrasal verbs. और इन वर्ड्स की वजह से you can see that their meanings will be change. Clear? These words, such type of words are called phrasal verb. The next one is transitive verb. Transitive verb, basically transitive means passing over. Clear? Transitive means passing over. अब passing over किस सेंस में आएगा? Simply I am giving the definition of this verb. Transitive verb, such type of verb that needs object. Clear? That needs objects to clear their meanings. ऐसे verbs जिनको अपने meanings को clear करने के लिए object का सहारा लेना पड़ता है. Simple the sentence structure is subject, verb and object. Clear? Such type of words ऐसे verbs हैं जिनको अपने meanings को complete sense में देने के लिए उसको क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी. अदरवाइज दे विल अनएबल टू कंप्लीट देयर मीनिंग्स. लाइक एड, हेड, बोर्ड. अगर हम एक सेंटेंस में इसको यूज करते हैं आई एड. क्लियर? अब सेंटेंस तो है आई एड. व्हाट वी एड, देयर इज नो, इट्स मीन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज गिवन इनकम्प्लीट सेंटेंस. अब इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या कहेंगे? लाइक आई एड. इनकम्प्लीट सेंस से हम इसको कंप्लीट करने के लिए हम वी कैन ऐड हेयर मैंगो, एप्पल, समथिंग एल्स. आई एड मैंगो, मैंने मैंगो खाया. अब ये हमें कंप्लीट सेंस है. मैंगो इज वर्किंग हेयर एज अ, क्लियर, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा इट्स मीन ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा. क्लियर? अब इसके ऑपोजिट क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब. अब इंट्रांजिटिव वर्ब सच टाइप मीन्स नॉट पासिंग ओवर. क्लियर? You can use here not passing over. Not passing over mean ऐसे verbs जिनको object की जरूरत नहीं पड़ती अपने meanings को clear करने के लिए. They are enough to complete their meaning itself on their own. ये अपनी complete sense, अपनी complete meaning है वो खुद से दे सकते हैं. They don't need any object. Simple is that I ate mango. अब है they fly. Clear? I slept, they hide. वो ये सो गए, वो उड़ रहे हैं, वो छुप गए. हमें इसको आगे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, हमें वो कंप्लीट सेंस दे रहा है. क्लियर? ऐसे वर्ड्स जिनको अपने कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, दीज आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. एंड ट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट जरूरी है और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है. सिंपल सा एक में आप लोगों ने डिफरेंस ये देखना है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है? ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट जरूरी है, इंट्रांजिटिव में ओनली सब्जेक्ट प्लस वर्ब. क्लियर? ओनली दिस फॉर्मूला कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम ट्रांजिटिव एंड intransitive. Subject plus verb and subject plus verb plus object. Clear? The next one is regular verbs. What are the regular verbs? Basically start simple action words but they end with ed and d. Simple हमने form of verbs किए होंगे like go, went, gone.
इस तरह की हमने कितनी याद की हुई है. देयर इज नो, इसका कोई भी स्पेसिफिक या बेसिक रूल्स नहीं है इसको क्रिएट करने के लिए. अब रेगुलर वर्ब्स क्या है, जिसमें एक रिदम पैदा हो रहा है, एक सेंस पैदा हो रही है. अब लाइक, सिंपल, लाइक इज अ वर्ब, फ्राई. क्लियर. अब लाइक क्या हो जाएगा, लाइट, लाइट. ठीक है. फ्राई, फ्राइड, फ्राइड. ऐसे वर्ब जिसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो होगी वो ईडी से क्रिएट होगी. आप देखिए, लाइक, लाइट, लाइट, एक स्मूथनेस उसमें है, कंटिन्यू है, उसको हमने डिस्टॉर्शन नहीं किया. क्लियर. वो डिस्टॉर्टेड नहीं हुई से. लाइक, लाइक, लाइट. नेक्स्ट वन इज फ्राई, फ्राइड, फ्राइड. सेम हेयर, क्राई, क्राइड, क्राइड. अब इस तरह की जो वर्ड्स हैं जो इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमें ईडी की जरूरत पड़ रही है. दीज आर कॉल्ड regular verbs because there is a sequence, there is a smoothness. The next one is irregular verbs. Irregular verbs, they are the opposition of regular verbs. अब इसको बनाने के लिए एंड पे ed जरूरी है. irregular verbs में ed कंपल्सरी नहीं है. क्लियर. अब इसमें क्या आ जाएगा, लाइक, बैड, वर्ड्स आ जाएगा, गो. The next one is irregular verbs. Irregular verbs जिसमें कोई स्मूथनेस नहीं होगा, कोई सीक्वेंस नहीं होगा. क्लियर. सिंपल इज दैट, नो, गो. सेकेंड फॉर्म इसकी क्या होगी, नो, न्यू, नॉन, एंड गो, वेंट, गॉन. क्लियर. You can see that no, new, known, go, went, gone. There is no ed. Clear. इसमें ed भी नहीं है, smoothness भी नहीं. It's mean these verbs are called irregular verbs. The next one is stative verbs. Stative verbs, such type of words that shows emotions, opinions, opinion. Clear. इस टाइप्स की वो फीलिंग्स को वो शो कर रहे हैं, इमोशंस को शो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट शोइंग एनी एक्शन. ठीक है. अब स्टेटिव वर्ब्स क्या है, बेसिकली द ऑपोजिशन ऑफ एक्शन वर्ब्स. स्टेटिव वर्ब्स में क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा बेसिकली वो एक्टिव नहीं होगा, वो पैसिव होगा. क्लियर. स्टेटिव वर्ब्स में क्या होगा, सब्जेक्ट विल बी पैसिव, सब्जेक्ट विल बी पैसिव एंड नो एक्शन. Clear. No action and there is the subject will be passive. Like example, he loves me. Clear. They want to eat apple. There is no action. They are not eating. They are not catching the apple. They are not breaking and cutting the apple. Such type of words like that, love, want, on, need. Simple जो है वो आपकी needs, emotion और feelings को show कर रहे हैं. इसमें किसी किस्म का subject जो है वो active नहीं है. There is no action. Clear. The next one is linking verbs. Linking verbs, you can see the name linking. Mean linking, they are creating the between the two clauses, they are creating link, relating two clauses each other. अब इन लिंकिंग वर्ब्स, अब टू क्लोजेस को, टू फ्रेजेस को आपस में लिंक करने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए आप जो वर्ड्स यूज होंगे लाइक बी, बिकम, ग्रो, सच टाइप ऑफ वर्ड्स दैट क्रिएट link and create connection between the two phrases. These words are called linking words. Clear. The last one is modal verbs. Basically before that we have discussed about the helping verbs. Helping verbs, आप helping verbs की बात किया, helping verbs that are used in tenses. Modal verbs, they are made to some extent they have the resemblance with the हेल्पिंग वर्ब्स. क्लियर. लेकिन मॉडल वर्ब्स में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा भी कुछ वर्ब्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं. क्योंकि टेंसेस, अगर हम टेंसेस वाले वर्ब्स यूज करेंगे वो तो स्पेसिफाई हो जाएगा टेंसेस के साथ. बट दीज टाइप्स ऑफ वर्ब दैट वी यूज टू शो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड गेट परमिशन, इसके अलावा जो टेंसेस के अलावा, हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा, ऑक्सिलरी वर्ब्स के अलावा भी कुछ वर्ब्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स.
simple, should, clear, would, could, can, may, might, let. There are many words that use बेसिकली इनका यूजेस जो होता है वो यही होता है कि वो मीनिंग को, सेंटेंस के मीनिंग को एक तो आपस में कनेक्ट करते हैं और उसके अलावा जो सिंपल मीनिंग क्रिएट करते हैं, या टेंसेस के अलावा जो हमें चीज़ों को क्लियर करने की जरूरत पड़ती है वो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मॉडल वर्ड्स करते हैं। क्लियर। तो ये थी आज का हमारा, तो ये थी हमारी आज की वीडियो और आज का टॉपिक जो था वर्ब्स एंड इट्स काइंड। आई होप यू विल बेस्ट अंडरस्टैंड इट। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।